एम्बलम है ये भारतीय नौसेना का है और दिस वाज प्रिपेयर्ड एंड केम इनटू फोर्स जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। फ्लैग ऑफ इंडियन नेवी अगर आप लोग देखोगे तो ये क्रॉस है और देयर इज एम्बलम, दिस इज द एम्बलम हियर एंड एम्बलम के वन साइड में अपना नेशनल फ्लैग है। नाउ फॉर any navy you have to be a maritime power. Now if you see the map of India, now it has got sea from all the three sides, there is land from only one side. Okay, so it is a vast area, and not only that, there is entire coastal shelf and other areas also that belongs to navy. Our country to be strong, our navy has to be strong, and we need good people to join naval services. I've shown you the entire coastline जो है वो that is 7,500 kilometers long. This is the Indian coastline. Besides that उसके हमें लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, उसमें कितने सारे आइलैंड्स हैं। उस आइलैंड के साथ भी कितने कॉन्टिनेंट शेल्फ होते हैं, उनके अपना कंट्री का अपना 12 नॉटिकल माइल्स जोन्स है, तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। ओके, so that is called something called exclusive economic zone, which is beyond 12 miles, and that area of this one EEZ is about 2 million square kilometers. Besides that, in times of distress and natural disasters such as floods, droughts, cyclone, earthquakes, even evacuation of personnel from the different countries, so Navy is useful. Okay, now as far as joining as sailors is concerned, there is a site joinindiannavy.gov.in. You can note it down, it is there. I will tell you a very simple method to keep a track if you are interested how to join the Navy. You just go to this website, everything is given, and most of the things are available on online also. So I will not get into those kind of details. Okay, so you will go to that site, and on the column careers and job, if you see, if you click there, you will get these following: am I eligible to become an officer, or to become a sailor, or to become a naval civilian, women in the Navy. So these are the criteria a person can join. Anybody has got any doubt? No, sir. Okay, so it is very easy. Just go to the website joinindiannavy.gov.in. okay, once you join there, and go to the career job and click am I eligible. Once you do that, you will be asked to register. So once you register, so with your Aadhaar card, which is virtual or Aadhaar card, or if you have got driving license or any other ID, voter ID, and all those, you can register through that, and your mobile number will be noted. Thereafter, in case any requirement is there, any suppose sailor's entry is there or officer's entry, whichever you are interested, the message will come to you from this website. Okay, so you don't have to search through the newspapers and other areas. But meanwhile, you keep going to the website, basically from April to June, July, and November, December, January. Okay, so all the this one जितनी vacancies हैं वो आपको उसमें दिख जाएंगे. But if you register yourself, you'll get SMS also. Okay. Now, for registering, your date of birth will be required. So you select the date of birth, whatever is there, the column will be there. Then your gender, male, female, select your gender, your highest qualification, and check my eligibility. So they will tell you whether you are eligible or you are not eligible.
first thing is that you must do it if you want to join Navy. Now, coming down to sailor's entry. Okay. Besides that, you will get in the newspaper also and employment news that all those people who are in villages and other areas, they can check on that. But if you have got access to the website, you must utilize this facility. Now, sailor's entry, there are basically 6 categories you can divide. First is artificer apprentice. इसमें क्या होता है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे होता है और दोनों का एग्जाम सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का एक एग्जाम एक ही साथ होता है, लेकिन जो हायर मार्क्स होते हैं वो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए होते हैं एंड उससे जो होता है वो सीनियर सेकेंडरी के लिए तो ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, उसमें ये लोग ये करते हैं, उस पर मैं अभी बताऊंगा. देन देयर इज ए मैट्रिक रिक्रूट व्हिच इज 10th पास. देयर आफ्टर समटाइम्स डिप्लोमा होल्डर, अगर टेक्निकल में सर्विसेज में कुछ कमी होती है तो बीच बीच में डिप्लोमा होल्डर्स की एंट्री भी होती है ऑन मार्क्स बेसिस एंड सम एग्जाम्स इफ इट इज कंडक्टेड इज देयर. देयर इज अनदर one, fifth one is the sports quota entry. As per the other services, this, if you are good in sports, if you have taken part in university, college, state level, national level, international level, and within the age limit, you can join these services. Okay. Now coming down to first two, that is artificer apprentice and senior secondary recruits. For that you have to pass plus 2 and after plus 2 you can get. There's a common online exam for both of them. There are total around 100 questions which you have to answer in 60 minutes. Okay. And basically those 25 questions will be based on maths, science, general knowledge and English. English is a Navy, since it is a technical service, English is a must and you have to have a good knowledge of English. So that is one of the criteria which you need to develop. And जो तिवारी जी आप लोग को अंग्रेजी सिखाते ही हैं, आप लोग ज्वाइन करो क्लासेस में, आपके स्ट्रांग हो जाएगी and then you can definitely join. SSR के जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट का होता है, इनकी मेरिट लिस्ट जो बनती है वो स्टेट वाइज बनती है. क्या है कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एवरी स्टेट हैज गॉट सर्टेन परसेंटेज ऑफ कोटा. ओके, वो आर्मी का भी वही है, एयरफोर्स का भी वही है. तो बेस्ड ऑन दैट द मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड. बट फॉर आर्टिफिशियल दिस अप्रेंटिस देयर इज ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, क्योंकि उनको ट्रेनिंग जो होती है 3 साल के आसपास होती है. इनफैक्ट इस स्टेज में मैं ये बताऊंगा, कुछ बहुत लोग ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि नेवी में कि वो ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, तो उनको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेलर्स और ऑफिसर्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है. जैसे एसएसआर की ट्रेनिंग है, आपको बेसिक ट्रेनिंग 21 वीक्स की आईएनएस चिल्का में दी जाती है और उसके बाद इमीडिएटली आप डिफरेंट ब्रांच जो आपको एलोकेट किया गया है उसमें बेसिक ट्रेनिंग करके यू आर ऑन द जॉब. दैट मीन्स बाय 8 to 9 months यू आर ऑन द जॉब. ओके, तो लेकिन आर्टिफिशियल अप्रेंटिस चूंकि टेक्निकल का है, उनको डिप्लोमा का भी ये डिग्री भी देनी है, तो उनकी टाइम थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो उनका पे स्केल और प्रिविलेजेस थोड़ा सा डिफरेंट है. फिर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और भी ज़्यादा हो जाती है. इनफैक्ट हमारे एक कलीग थे, मेरे से जूनियर थे, या एक पोस्ट उनका कमांडर एसके सिंह का नाम था. उनके फादर थे मेजर जनरल, रिटायर हुए थे, तो वो बिहार के ही थे, पटना साइड के ही कहीं थे. तो उनके गांव से क्या हुआ कि एक लड़का सेलर की एंट्री में गया उस ईयर में, और इनका बेटा एनडीए गया. तो 6-7 महीना 9 महीना की ट्रेनिंग हुई इस साल, उसके बाद 2 महीना एक और ट्रेनिंग हुई एंड देयर आफ्टर करीब 1-1.5 साल में
क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट नए शिप पे हुई थी जो कमीशनिंग हुआ था रशिया में, तो वो चला गया रशिया। तो इसका 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, एनडी में ही था। उसके बाद भी और भी ट्रेनिंग होती है, 2 साल 5-6 साल की ट्रेनिंग होती है। तो और उसके बाद वो इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ भी कर गया एनडीए में से आईएनएस शिवाजी। तो लोगों को आज से वो हमेशा पूछते थे उनके फादर से कि उसका बेटा तो नेवी में अभी इतना जॉब कर रहा है, कहीं रशिया में है, इधर है उधर है, और आपका बेटा अभी तक ऑफिसर बना ही नहीं। यानी कि मतलब दे हैड ओपिनियन कि भाई हिज सन इज ए डफर, ओके, उसको कुछ नहीं आता है। तो ऐसा है कि ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है। आप पहले तो और भी ज्यादा होता था। आप स्पेशली टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए आप एनडीए 3 साल करते थे, फिर 1 साल इसमें नेवी की ट्रेनिंग करते थे, फिर 3 साल आप आईएनएस शिवाजी में बीटेक वगैरह करते थे। तो आप समझ सकते हो कि 3 3 6 7 साल लग जाता था। बाकी लोग को भी 5 साल करीब लग जाते हैं जो एनडीए +2 से करके जाते हैं। यहाँ पे क्या है सेलर्स की ट्रेनिंग में, द वे यू एंटर, the day you entered INS Chilka, your payment salary starts. Okay, your salary, आपका रहना सहना, कपड़े लत्ते, खाना पीना, everything is provided. आपका बैंक अकाउंट खोल दिया जाएगा INS चिल्का में, and whole thing will be as per the procedure. Even in the training you will be paid. But in case of officers, during the training phase, you are not paid. Only once you are commissioned, that is after 5 years, you'll be, for 4 to 5 years, whatever the time is there, then only you'll be commissioned in the services. So that is the difference. So actually, सेलर्स ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, ठीक है, पे स्केल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। तो ये रहा कि ऑनलाइन एग्जाम में ऐसे होता है। और नाउ एज फार मार्क्स बेसिस आर कंसर्न, आपको फॉर एसएसआर के लिए यू शुड बी पासिंग द +2, देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज। वेयर फॉर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में होना चाहिए। एज लिमिट जो है दोनों का 16.5 years to 19.5 years है। So there is no difference. So once you log into the site and you will know कि till what age to what age you can apply for these services. तो जब आपका अगर रिटर्न में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, देन देयर इज ए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी, वो सेम डे ही हो जाता है, ठीक है। उस जब पीएफटी में आप पास कर जाते हैं तो वहाँ पे प्रिलिमिनरी मेडिकल होता है। आपको बेसिकली देखा जाता है कोई स्किन डिजीज नहीं है, आपका फ्लैट फुट नहीं है, और हाथ आंख कान वगैरह सब ठीक है। तो फुल मेडिकल उसमें नहीं होता है, बट प्रिलिमिनरी मेडिकल जनरली हो जाता है कि आप देखने के लिए आपके बॉडी ठीक ठाक हैं। और ये एग्जाम जो है साल में 2 बार कंडक्ट होता है और 2 बैचेस की एंट्री होती है। आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑल दिस पीपल दे गो टू द बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट वेयर दे आर ट्रेन, दैट इज आईएनएस चिल्का। ये चिल्का लेक के पास में ही है और उड़ीसा में है। दूसरी एंट्री जो है मैट्रिक रिक्रूट। मैट्रिक रिक्रूट जो है बेसिकली 3 ब्रांचेस के लिए है। पहले हम लोग उसे कुक कहते थे, आजकल टर्मिनोलॉजी शेफ का है। इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं, ऑफिसर्स कुक एंड सेलर्स कुक। दूसरा होता है स्टीवर्ड्स। स्टीवर्ड्स कौन होते हैं? जैसे कि आप फ्लाइट में देखते हैं वो लोग सर्व करते हैं, या होटल्स में, ठीक है, तो वो स्टीवर्ड्स होता है। एंड हाइजीनिस्ट होते हैं जो बेसिकली शिप की मेन एरिया एलवे वगैरह सब वो सफाई,
वॉशरूम बाथरूम वगैरह सब की सफाई वगैरह सब देखते हैं, और इनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि शिप की जो व्हीकल्स हैं उनको ड्राइव वगैरह करने के लिए उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दे आर, हाँ, तो these are the multi-purpose. Hygienist is that's basically multi-purpose job. इनकी क्वालिफिकेशन सेम है, 16.5 to 19.5 years. ऑनलाइन एग्जाम ट्वाइस इन ईयर, मैट्रिक पास 50% मार्क्स होना चाहिए। इनकी मेरिट लिस्ट भी बनती है। देर आफ्टर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जाम, and is also conducted twice in year. All this information you will get on the Navy site. Join Navy in .gov.in. Then is स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा में उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। आज आई सेड कि यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल अगर आप खेले हैं and your age is between 70 years to 22 years, इसमें 6 महीना का डिफरेंस है। हाँ, you can be best part is there is no written exam in this. If you are good in sports, then is 12th or 10th पास होना चाहिए। ऑफलाइन फॉर्म्स फिल उसका आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कीजिए, कॉल्ड फॉर, यू विल बी कॉल्ड फॉर ट्रायल्स। उसके बाद मेरिट लिस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस होगा, बेसिकली मेडिकल, एंड इट इज ऑल्सो कंडक्ट ट्वाइस इन ईयर। देन एक लास्ट होता है म्यूजिशियंस का, मैट्रिक रिक्रूट म्यूजिशियन। इसकी इसकी एडवर्टीजमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर सब में आएगी, आप उसमें डाउनलोड फॉर्म कर लीजिए। वो पेपर में भी फॉर्म रहता है। Then you have to have proficiency in playing string, keyboard, woodwind, brass, percussion instruments. So those who qualify written are permitted to go for PFT, and then shortlisting of candidates is done, followed by this one medical, full medical, and this one. अब फिजिकल फिटनेस में क्या क्या होता है, टेस्ट एंड मेडिकल। फिजिकल फिटनेस में 1.6 किलोमीटर रन जो है आपको 7 मिनट में करना चाहिए। 20 उठक बैठक, 20 स्क्वाट्स होना चाहिए, एंड 10 पुशअप्स। देखिए ये देखने में काफी मतलब लगता है कि हाँ सभी कर लेंगे, लेकिन कम से कम आपका इसका स्टेमिना 3 टाइम्स होना चाहिए, 2 to 3 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज एक ही दिन में कंडक्ट होते हैं। एंड कैंडिडेट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो आप पहले से अगर प्रिपेयर नहीं रहेंगे, आप पहले से मतलब 25-30 पुशअप कर सकते हैं, 40-50 स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप 5 मिनट में आप 1.6 किलोमीटर रन कर सकते हैं। तो उस देन ओनली यू नो यू विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू क्लियर। So those who qualify the written are permitted to go for PFT. Immediately आपके एग्जाम के बाद within 1 hour आपको रिजल्ट निकल जाएगा। जो सब रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उनका उसी समय PFT हो जाता है। ठीक है, तो those who qualify for PFT they will go for pre-medical. Then after your medical is done, यहाँ स्टेज में क्या होता है कि अगर आपको प्री मेडिकल में मान लीजिए कुछ क्योरेबल डिजीज है, कुछ है, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक करने के बाद फिर आप ये कर सकते हैं, फिर आपका मेडिकल हो सकता है, क्योंकि वो टाइम रहता है मेरिट लिस्ट बनने का। इस पीरियड में आप अपना रीचेक करके ठीक करवा सकते हैं। तो ये प्री मेडिकल का है। एंड आफ्टर प्री मेडिकल योर मेरिट लिस्ट एज आई सेड, state wise, then all India level, all these then sports quota merit, all these are prepared. Okay,
then you will call it. So once the merit list of all candidates qualified in all respect will be prepared at IHQ MOD, that is Delhi, for different entries depending upon the number of vacancies available. जितना vacancies होगा उसके अनुसार मेरिट लिस्ट बनता है. जैसे अब 100 है तो 130 140 के आसपास वो लोग मेरिट लिस्ट बनते हैं. ना सभी बच्चे अगर अच्छे कर रहे हैं तो उनका कट ऑफ मार्क्स जो है वो ऊपर चला जाएगा. अगर सभी बच्चे अच्छा नहीं कर पाए एग्जाम में तो कट ऑफ मार्क्स थोड़ा लो रहता है. तो वो वैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द बैच एंड हाउ दे हैव परफॉर्म एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल. So final enrollment medicals. So once the merit list and the things are prepared, selected candidates are issued a call letter for final medical exam to report INS Chilka, Odisha. So you will be directly reporting at INS Chilka. वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, नाम शायद INHS निवारणी नाम है हॉस्पिटल का. तो चिल्का में आप रिपोर्ट करेंगे on a specified date and time to undergo a final enrollment medical examination prior to enrollment. तो आप सिलेक्शन के पहले आपका प्रॉपर मेडिकल होगा. उस मेडिकल में आपको क्वालिफाई करना जाने. हाँ, आपके जाने आने का जो खर्चा है, स्लीपर क्लास रेलवे टिकट का जो इतना बनता है वो आपको रिवर्स वहां पे हो जाएगा अगर आप फिट नहीं है तो. कैंडिडेट्स फाउंड अनफिट नॉट बी एनरोल्ड फॉर ट्रेनिंग. नो अपील इज परमिटेड फॉर रिव्यू आफ्टर फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन. ये जो मेडिकल होगा इसमें आपको अपील नहीं कर सकते हैं. वो अपील आप शुरू में कर सकते हैं. The final enrollment of the Navy will be subject to the candidate clearing final medical fitness at INS Chilka. तो हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग करते हैं और वो गलत है. कैंडिडेट्स जो हैं they are sending application more than one for the same entry, or they apply from different locations many times, more than once. So if you have done that, you will be straightway disqualified. Candidature of candidates selected is valid for current batch only. इसका मतलब ये है कि अगर आप की नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, आज आई सेड की 100 वैकेंसीज हैं और 150 कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनी है. नाउ सपोज योर रैंक इन दैट इज 145. ठीक है, मेडिकल के बाद 100 के बदले में मान लो उसमें से 20 रिजेक्ट हो गए फाइनल मेडिकल में, तो मेरिट लिस्ट 120 तक बैच का एनरोलमेंट हो गया. लेकिन आपका 145 है तो नहीं हुआ. इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर इस मेरिट लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं. नहीं, अगर नेक्स्ट बैच में जाना है तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर क्लियर करना पड़ेगा. That batch of enrollment is over. Navy reserves the right to shortlist applications and to fix cutoff percentages without assigning any reason. No communication shall be entertained on this account. So once it is done, it is.
इसके बाद जब आपका सब एनरोलमेंट वगैरह सब हो जाता है, देन आईएनएस चिल्का में आपकी जो बूट कैंप है वहां पे आपकी बेसिक ट्रेनिंग अराउंड 21 वीक्स की शुरू हो जाती है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग योर पे ऑल्सो। एक बात है कि अगर आप नेवी में अगर 10-15 साल सर्व कर गए तो यू कैन स्टैंड एनीवेयर इन द कंट्री एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि आईएनएस चिल्का में जो नेवी का सेलर्स की ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट है, वहाँ पे 21 वीक की ट्रेनिंग होती है, 21 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। तो वो बेसिक ट्रेनिंग में आप क्या क्या सीखते हैं, बेसिक उस समय आपको सी के लिए कस्टम किया जाता है और थोड़ी बहुत नॉलेज पढ़ाई लिखाई की होती है। तो ये सब चीजें आपको 21 वीक में सिखाई जाती है। उसके बाद आप लोग प्रोफेशनल स्कूल्स वगैरह में चले जाते हैं, जैसे टेक्निकल वाले हुए, इंजीनियरिंग है तो आईएनएस शिवाजी वो लोनावाला में है, वहाँ चले जाएंगे। जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, टेक्निकल वाले, वो चले जाते हैं इधर आईएनएस वलसुरा जो गुजरात में है। एविएशन वाले कुछ लोग कोची में आते हैं, कुछ लोग हंसा में आते हैं, गोवा में। बाकी जो है जनरल वाले वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में जाते हैं, गंडरी हुआ, एएसडब्ल्यू हुआ, बाकी सब जो ब्रांचेज हैं उनकी ट्रेनिंग जो है कोची में होती है। दैट इज द सदर्न कमांड, दैट इज कॉल्ड द ट्रेनिंग कमांड बेसिकली। ये कांटेक्ट पॉइंट्स हैं ऑफिसर्स एंट्री के लिए, सेलर्स एंट्री के लिए, और अगर आप डायरेक्टली रिक्रूटमेंट इसमें कांटेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए है। जब जनरल सर्विस में जाते हैं तो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, गंडरी है, एएसडब्ल्यू है। एंड गंडरी होता है जो कि गन्स वगैरह मैन करते हैं, फायर करते हैं, स्मॉल आर्म्स, गन्स, मिसाइल्स। इनकी आपको ट्रेनिंग गंडरी स्कूल में कोचिंग में दी जाएगी। फिर दूसरा ब्रांच है वेपन का, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। शिप को अगर कहीं से ज्यादा डर है तो सबमरीन से ही है। एयरक्राफ्ट भी दिख जाता है लेकिन सबमरीन दिखना मुश्किल है और पता करना भी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए एक स्पेशलाइजेशन होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर का, कि सबमरीन को हम कैसे डिस्ट्रॉय करें। तो उसके लिए बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और उसका जो वेपन है वो मिसाइल्स की तरह ही होता है, उसको टॉर्पिडोज कहते हैं, जो आप फायर करते हैं सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उसकी भी अपनी मिसाइल की तरह अपने रनिंग होता है, सब कुछ होता है, कंट्रोलेबल होता है। तो दो उस सब की ट्रेनिंग आपको वहाँ पे एएसडब्ल्यू स्कूल में मिलेगी। तो ये सब बहुत ही प्रोफेशनल चीज है। और जैसे मिसाइल्स हुए, टॉर्पेडोज हुए, ये वेपन्स हुए, करोड़ों के होते हैं। तो मतलब प्लेन लैंग्वेज में आप मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, उसको कोड करना पड़ता है। तो उसके कोडिंग प्रोसीजर्स, डिकोडिंग प्रोसीजर्स, ये सब आपको सिग्नल स्कूल में, कम्युनिकेशन स्कूल में सिखाया जाता है। फिर होता है एनडी, इसको बोलते हैं नेविगेशन एंड डायरेक्शन। इसका एक स्कूल होता है, वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि जहाज को एक जगह से दूसरे जगह से कैसे लेके जाएं और उसको कैसे मूवमेंट को कंट्रोल करें। तो उस इसकी जानकारी आपको एनडी स्कूल में दी जाती है। अगर आप एनडी ब्रांच आपका चिल्का में सिलेक्ट हुआ तो आप एनडी एनडी स्कूल जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, या कम्युनिकेशन स्कूल जाएंगे, या एसडब्ल्यू स्कूल जाएंगे, गंडरी जाएंगे, एविएशन के लिए जाएंगे। ये सब सारे जनरल हैं। दीज आर द एडवेंचर एक्टिविटीज यू कैन डू, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, सागर परिक्रमा, बहुत सारे। इफ यू आर एडवेंचरस मैन यू विल गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू द एक्टिविटीज। These are the rank structures of officer's rank, which is sub-lieutenant, lieutenant, then lieutenant commander, commander, फिर कैप्टन। कैप्टन में 4 स्टेप्स आ जाते हैं। इस रिंग को नेल्सन रिंग कहा जाता है। ठीक, उसके बाद फिर रैंक होता है कोमोडोर, फिर देन रियर एडमिरल, देन वाइस एडमिरल, देन एडमिरल एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट। सेलर्स के रैंक जो होते हैं वो
मतलब C2 और C1 से शुरू होता है, फिर लीडिंग सीमेन, पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर और सेकंड क्लास, देन मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। इसके बाद ऑनरी रैंक होती है जो रिटायरमेंट में एज ए सब लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट आपको दी जाती है आपके डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए।